Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all of you. The friend who we have today, the guest speaker, is Dr. Ali Raza Nemati. Ali Raza is known to me for some time now. He's an individual with a diversified experience and personality in HR, training, recruitment, talent, and organization development. He's the founder and CEO of ARN Advisory Services. He has 10 plus years of experience in banking, educational, and pharmaceutical sectors in the areas of human resources, learning and development, Islamic banking, research and development, and corporate trainings. Ali Raza is also a certified training professional from FAA Malaysia, certified learning and development professional from Concord, Canada, and a certified personal profile analysis practitioner from Thomas Hupel, as well as a certified trainer for IMS Knowledge, Franklin Covey, Pakistan. Incidentally and rather surprisingly, is also a certified Islamic finance executive from Attica, Dubai, and a certified Islamic banker and trainer from Jamia Darul Uloom, Karachi as well. He has impacted the life of over 10,000 people so far in the areas of soft skills, sales, research, and Islamic banking. He has his PhD doctorate in marketing, along with his MS with distinction, and is having 17 national and international research publications and presentations in the field of marketing, human resource, and Islamic banking. He's also presented many research papers at global forums on behalf of Mizan Bank and Bank Al Falah in Malaysia and Germany. A very warm welcome to you, Dr. Ali Raza. The floor is all yours. Thank you so much, sir. It has been a pleasure talking to you again online. I guess in person we have met approximately 2 years back, and it was a great sitting with you because of the fact कि थोड़ी सी Sufism के ऊपर discussion थी, and it went quite well. अच्छा, एक तो ये कि first of all I congratulate you and your team for introducing FailFest. FailFest पे जब मैंने first time idea सुना तो it was very interesting to me. Usually होता है कि जी सर आप आ जाएं और अपनी success story सुना दें, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी फेलियर सुनाने थे. अच्छा, मैंने आपके पुराने सारे FailFest के प्रोग्राम्स देखे और मुझे I love them, and so फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस टू यू. अच्छा, अब सेकंड ये था कि मैंने बात करनी थी तो लेक्चर मिनट्स और 10-15 मिनट्स, तो मुझे सोचा कि शायद थोड़ा सा मैं ऐसी बात कर लूँ जो डेली लाइफ से लिंक्ड है और मेरे फेलियर्स का मैं बहुत से फेलियर्स से फेस किए हैं और लॉन्गर रन में इसका इतना इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का कि अगर आप वो चीज़ थोड़ी दुरुस्त कर लें, और अगर काश मैं आज 10 मिनट में दुरुस्त कर सकूँ तो मेरे ख्याल से बहुत सी लोगों की ज़िंदगी चेंज हो सकती है अगर वो ये सुन लें. मैं गारंटी कर रहा हूँ इंशाल्लाह. मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ. मैंने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया है और रिफा का जो कैंपस है मैनेजमेंट का वो मीज़ान कैंपस है जो कि पेशावर रोड पे है. वहाँ से मेरे घर की वॉक अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लें 35 मिनट्स होती थी, 30-35 मिनट्स. बट माई फोर्स फादर सेड कि भाई देखो तुम टैक्सी ले लिया करो या कोई गाड़ी ले लिया करो और तुम ये इतने पैसे पकड़ा करो और उतने पैसे लेकर तुम जो है वो टैक्सी और गाड़ी. अच्छा, मुझे डेली यूनिवर्सिटी के लिए पैसे मिलते थे. जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी से मैं आपको अब बात कर रहा हूँ, जैसे आज आप रिलेट इसलिए बात ही कर सकते हैं कि शायद अगर आप यही बात दिसंबर में सुन रहे होते तो रिलेट ना कर पाते. वो भी जून का वक्त है और अभी भी जून ही चल रहा है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे फिर लाइफ के ऊपर थिंकिंग पैटर्न मेरा चेंज हुआ. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आई यूज्ड टू वॉक टू अ चौक जो कि कस्टम मार्केट है. वहाँ पर यूजुअली किंकी खड़ी होती थी या टैक्सी खड़ी होती थी. तो मैंने सोचता था कि अच्छा, उसके बाद क्या होता था कि मैं कहता था कि यार मेरे पास फॉर एग्जांपल 50 या 60 रुपए हैं, इस तरह करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा और चलूंगा तो आगे से ले लेता हूँ टैक्सी, और आगे से जब टैक्सी लूंगा तो थोड़े कम पैसे होंगे. अच्छा, आगे जब मैं पूछता था वो कम नहीं करता था, उतनी बता रहा होता था. फाइनली यूज्ड टू वॉक और मैं कहता था चलो यार थोड़ा और चल लेते हैं, घर के करीब आ गए तो आई विल सेव मनी दो 50-60 रुपीज. लेकिन ये तो बात मेन होगी. बीच में क्या होता था कि बीच में एक बेकरी आती है जिसका नाम है गोरमे, जो भी मौजूद है क्योंकि मैं इतना पुराना आदमी नहीं हूँ. वहां पे जब आप यू पास बाय तो वहां पे एक स्टूडेंट जो कि बैचलर्स का हो, ये बात है 2006-07 की, और वो मैं क्या करता था कि वहां पे जब मेरी नजर पड़ती थी बेकरी में और मेरे पास पैसे भी होते थे तो आई यूज्ड टू सी द रेफ्रिजरेटर व्हिच हैड कोल्ड ड्रिंक्स
कोल्ड फिजी ड्रिंक्स, जूसेस एंड वाटर बॉटल्स। अच्छा, मजे की बात ये कि मेरे पेरेंट्स ने, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सेहत दे, कभी भी कहा ही नहीं कि बेटा आपने जिंदगी में बेटा कभी हमेशा प्यासा रहना है, आपने पैसे बचाने हैं, आपने अपने पे जुल्म करना है, और आपको प्यास भी लगी हो तो गला सूखा भी हो, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको ड्रिंक पी लो। ये मेरा एक अपना पर्सनल डिसीजन था जिससे मैं अपने आप को तकलीफ देता था। अच्छा, और ये एक दफा नहीं हुआ। अच्छा, मैं वो आई यूज्ड टू पास बाय दैट शॉप और आई नेवर यूज्ड टू टेक दैट ड्रिंक। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी अंदर ये चीज पक्की होनी शुरू हो गई, जिसको मैं बता रहा हूँ आपको, कि यार इस तरह करते हैं फ्यूचर के लिए ना, लेट्स फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। मैंने अप्रोक्सीमेटली समझे जब मैं मेंटली ग्रो हुआ, उसके बाद मैंने ना प्रेजेंट छोड़कर, मतलब आई हैव पुट माय प्रेजेंट पीछे एंड आई हैव स्टार्टेड गिविंग माय सेल्फ पेन फॉर द फ्यूचर आई एम प्लानिंग व्हिच इज नॉट इन माय कंट्रोल। अच्छा, पहली दफा मुझे एहसास दो बातों से हुआ। एक तो ये कि जब मेरी जॉब लग गई तो मुझे उस 50 रुपए, वो कई 50 रुपए मेरी सैलरी में थे, और मुझे ये अंदाजा हुआ कि अली यार, मतलब मैं निहायत ही, अगर वर्ड इस्तेमाल करूँ, बेवकूफ इंसान निकला हूँ जिंदगी में, कि मैंने वो जो एक 7 अप का टिन अगर मैं खरीदता और अगर मुझे प्यास लगी होती और मैं उस वक्त वो पीता और मुझे एंजॉय करता या पानी पीता, तो आई कुड हैव क्वेंच्ड माय थर्स्ट, आई कुड हैव एंजॉयड दैट प्रेजेंट टाइम which I have missed and that time will never come back। और अब मैं उस 50 रुपए की जो वैल्यू है, वो फाइनली जरी पता, वो एक थेरी भी है उसके मुताबिक, वो अब वैल्यू ही कम होगी ऑटोमेटिकली उस चीज की। इसी तरह लाइफ में क्या होना शुरू हो गया कि मैंने जितनी भी जिंदगी में काम करने शुरू किए, आई ऑलवेज फोकस किया इसको फ्यूचर में ना ऐसे कर लूंगा, एंड आई कंप्रोमाइज माई माई प्रेजेंट। और उस कंप्रोमाइज प्रेजेंट की वजह से मुझे बहुत से नुकसान उठाने पड़ते थे। नुकसान से मुराद ये कि मैं क्या करता था कि फॉर एग्जांपल अभी जो मेरे पास टाइम है, आई यूज्ड टू कंपेयर द करंट टाइम विद समवन एल्स। अब इसकी थ्योरी है, बेशक अगर कोई लिख सुन रहा है तो वो देख ले, तो सोशल कंपैरिजन थ्योरी। अब होना क्या शुरू हुआ कि फॉर एग्जांपल जब मेरी जॉब लग गई, तो मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, मैंने उसी जॉब की से इतनी लर्निंग की, बट मेरे कुछ क्लास फेलोज कह लें या आप कलीग्स कह लें, उनकी जॉब मेरे से बेहतर सैलरी पे लग गई और कुछ की लगी नहीं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 10 का बैच था, मेरी जॉब लग गई, 2-3 की और लगी, 6 की नहीं लगी। अच्छा, अब नाउ आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर्स। बिलीव करें, अगर मैं सिर्फ आई रिटर्न माई सेल्फ बैक, आई लर्न अ लॉट, मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थाउजेंड रुपीज मेरे माइंड में डिससेटिस्फैक्शन एंटर हो गई, सख्त किस्म। और मैं थ्रू आउट पूरा 24 घंटे ये सोचता ही नहीं था कि मैं करंटली कर क्या रहा हूँ, मैं डिससेटिस्फाइड रहता था। आप बिलीव करें, उस डिससेटिस्फैक्शन की वजह से आई यूज्ड टू बी रेस्टलेस। मैं शायद ये फील करता था कि यार मेरी तो सैलरी कम है, तो शायद सैलरी का कॉम्पिटेंसी से कोई ताल्लुक है, और वो फलां की सैलरी उतनी है। अब ये तो उस वजह से जब मैंने नेक्स्ट जॉब स्विच करने से पहले तक मैं बहुत ज़्यादा इरिटेंट, आप समझ लें सोशल कंपैरिजन में था, और जिसकी वजह से मेरे बहुत से डिसीजंस लाइफ में गलत होते थे। अच्छा, उसकी वजह से मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। हालांकि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत ज्यादा मिलने जुलने वाला हूँ, बचपन से बात करने वाला हूँ, आई एम द एल्डेस्ट इन माय फैमिली, एक्सट्रीमली पैम्पर्ड, लेकिन आई यूज्ड टू बी इरिटेटेड। इवन माय पेरेंट्स स्टार्टेड आस्किंग, और कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, तुम सिर्फ ही रहते हो, पढ़ाई का मसला है क्या है। माय फादर सेड टू मी कि तुम्हें तो जॉब की जरूरत ही नहीं है, तुम जॉब मत करो, तुम पढ़ लो आगे। साथ साथ मैंने, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने बैचलर्स जब खत्म हुआ, साथ ही मैंने अपना मास्टर शुरू कर दिया विदाउट अ ब्रेक ऑफ अ सिंगल डे, जस्ट फॉर द फैक्ट कि मेरे मुताबिक मुझे किसी से सुपीरियर होना है फॉर समथिंग। ये असल में ये सारी साइकोलॉजिकल बातें मैं आपको वो बता रहा हूँ, ताकि ये सारी बातें ना हर आम बंदा अपने आप ब्रेक तो नहीं है, आवाज ब्रेक तो नहीं है? हेलो, इट्स ऑल राइट, प्लीज गो अहेड। अच्छा, आई कैन हियर यू। जब मैं स्टूडेंट काउंसलिंग करता हूँ तो 1000 इस तरह की क्वेरीज मेरे पास आते हैं। अच्छा, जब आते हैं तो यही सेम क्वेश्चन होता है। अच्छा, होता इसकी बात क्या है कि नाउ आई कंक्लूड दिस कंप्लीट थिंग। नंबर 1, सबसे पहला क्या होता है कि हमें सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं अपने ऊपर कि जी मेरी सैलरी का ताल्लुक मेरी कॉम्पिटेंसी से। अगर ऐसा हो तो अल्लाह ताला तमाम इनकॉम्पिटेंट लोगों, मतलब तमाम इनकॉम्पिटेंट जो है वो लोग तो भूखे मर जाए ना। तो अल्लाह ताला की जो डिवीजन का क्राइटेरिया है वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, ठीक है। ये मैंने लर्न किया काफी आगे जाके, और ब्रूमी भी पढ़ा, और इस तरह से, मतलब क्योंकि
हम लोग समझते हैं कि जी देखिए मैं तो इतना कॉम्पिटेंट हूँ और मेरी सैलरी 1 लाख रुपया और वो तो एक बैक बेंचर था और उसकी सैलरी 2 लाख रुपया। अब पूरी जिंदगी इस सेटिस्फेक्शन में इस बात पे रहूंगा। हालांकि अल्लाह ताला रिस्क इस तरह डिवाइड नहीं करता, अल्लाह ताला कॉम्पिटेंसी के ऊपर रिस्क नहीं देता, ठीक है क्या? अच्छा, पहली बात ये लर्न की काफी लेट की। अच्छा, अब एक और चीज बताता हूँ, ये चीज मेरे माइंड में चलती रही, मैंने आई स्टार्टेड चेंजिंग माय पर्सनालिटी, लेकिन जब कोई चीज आपके एटीट्यूड में चली जाती है बहुत मुश्किल होता है। मेरी, आप समझ रहे हैं कि आज से 6-7 साल पहले तक मेरी जो स्पेंडिंग थी ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे होने के बावजूद मैं फोन चेंज नहीं करता था, बिकॉज दैट वाज इनग्रेव्ड इन माय पर्सनालिटी। मैं 7 साल पुरानी बात कर रहे हैं, पर आपसे 2012-13 तक पैसे होने, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। लेकिन बिलीव करने बहुत मुश्किल था एटीट्यूड चेंज करना। एक पर्सुएशन थ्योरी है, एक कम्युनिकेशन दैट लीड्स टू चेंज योर एटीट्यूड एंड देन एटीट्यूड लीड्स टू चेंज योर बिहेवियर। उसके बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैं मेरी काइंड ऑफ फेलियर स्टोरी कह लें। मेरा पीएचडी जो है वो कोई 7.5 साल में कंप्लीट हुआ है, और 7.5 साल में कंप्लीट होने का, मैं आई स्टार्टेड माय पीएचडी इन 2012 और अब जाके कंप्लीट हुआ है इसी मंथ। तो वो उसका रीजन ये है कि शायद आप जब आई यूज्ड टू बी मैं स्टूडेंट कमेटीज में था, आई यूज्ड टू बी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट फोरम्स में रिप्रेजेंट करता था, फिर मैं आई हैड डिस्टिंक्शन इन एमएस एज वेल। तो जब ये सोशल कंपैरिजन था, सोशल कंपैरिजन की वजह से मैंने एक अनड्यू प्रेशर अपने दिमाग में रख लिया हुआ था हर वक्त कि जी मुझे ये नहीं तो ये तो करना है, क्योंकि दूसरे को दिखाने की जरूरत है। स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत प्रॉब्लम था। और देन अल्लाह का बहुत करम है, ये मैं आपको एक दो वर्ड्स बताता हूँ। एक वर्ड अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग देख लें। मैं अक्सर लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो बेहतर आदमी है जो अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट है, या वो बेहतर आदमी है जो कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट है। मतलब एक आदमी जो अनकॉन्शियस है लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट है, वो बेहतर आदमी है। या मैं इसको और रिफ्रेश कर लेता हूँ, वो आदमी बेहतर है कि जो अनकॉन्शियसली स्टूपिड है, या वो आदमी बेहतर है जो कॉन्शियसली स्टूपिड है। तो मेरे ख्याल से वो आदमी बहुत नुकसानदेह है जो अनकॉन्शियसली स्टूपिड है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो स्टूपिड है। इसी तरह वो आदमी बहुत नुकसानदेह है जो अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट है। सो मैं कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट था एटलीस्ट, कि भाई मुझे पता है मेरे अंदर ये बुराइयां हैं। तो वो बुराइयां फिर फाइनली, तो ये जो लेसन आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने फाइनली, अल्लाह का बड़ा करम है कि उन्होंने मुझे, अल्लाह ने बता दिया कि आपने चीजें अपने अंदर आइडेंटिफाई करके चेंज करें। एटलीस्ट आई हैव एक्सेप्टेड फॉल्ट्स इन माई सेल्फ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस स्टेटस को में फंस जाते हैं और कहते हैं मैं क्यों मानूं, मैं तो ये और मैं तो वो। उसके बाद खैर अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड टू मी। आई यूज्ड टू बी कंट्री हेड ट्रेनिंग्स फॉर बैंक अल्फा एज वेल। उसके बाद मैं नॉर्थ ट्रेनिंग का हेड भी रहा मिजान बैंक में। मैंने लर्न किया। उसके बाद फाइनली मैंने, मैं आपको बताया था स्टोरी, जब मैंने अपना पीएचडी का सिनॉप्सिस शायद डिफेंड कर रहा था या एमएस का, तो उस वक्त मैं, क्योंकि एमएस डिस्टिंक्शन की थी, तो मेरे माइंड में था कि मैं बहुत और काम कर रहा हूँ। तो उस जमाने मुझे याद है, मुझे कमेंट मिला कि आप अपनी ना, अभी इस वक्त आप एक स्टूडेंट है और कॉर्पोरेट लाइफ से ना बाहर निकल है, और योर फला थिंग इज रिजेक्टेड, राइट, यू नो, वी डोंट एक्सेप्ट दैट। और आप यकीन करें, मैंने इस वक्त डिसाइड कर लिया कि क्योंकि मेरी बेइज्जती हो गई है और सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी कंप्रोमाइज हो गई है, तो मैं ये चीज छोड़ दूंगा। एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स, उन्होंने कहा कि जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, आई डोंट नीड इट। तो ये 7-8 साल पहले काफी दिमाग इस तरह का था। लेकिन फाइनली अल्लाह का बड़ा करम है कि देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मैं एंड पे पॉइंटर्स बताऊंगा जिसमें मैंने काम किया, अभी लिख भी दूंगा ताकि ऑडियंस के लिए आसानी हो। और उसके बाद देन थिंग्स अल्लाह हैज पुट लाइक ऑन माय स्टार्टेड माय वे। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह चीजें कंप्लीट होती गई, फिर अल्लाह ने ग्रोथ करवाई। लेकिन फाइनली अब करता मैं क्या हूँ, होता ये है कि नाउ आई एंजॉय माय प्रेजेंट। मैं ये नहीं सोचता कि फ्यूचर में ये कर लूंगा, फ्यूचर ये कर लूंगा, फला आदमी क्या कर रहा है इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, फला आदमी कैसा कर रहा है इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, शायद मेरी अम्मी अगर इसको लाइव सुन रही हो तो मुझे डांटे भी। क्योंकि ये फेल फेस्ट है ऐसा फोरम के, इससे आप दिल की बातें करते हैं ताकि लोगों को जेनेरिक बातों से कनेक्ट कर सके, वरना अगर आपको थ्योरी पढ़ानी हो तो मैं, मतलब वो और बात है। मुझे याद है कि मैंने जब मैं चेंज होना शुरू हुआ तो मैंने ना अपने टेबूज चैलेंज करने शुरू किए, जो बेसिक सोसाइटी के टेबूज हैं, जिस बात है ना, मैंने कहा अब तो मैं हर चीज़ चैलेंज करूंगा, जो भी मेरी चीज़ है वो भी चेंज करूंगा। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि 2014 में आई गॉट मैरिड। तो मैंने डिसाइड किया कि मामा, मैंने डिसाइड किया कि मैं मेहंदी नहीं करूंगा। तो माय बोथ पेरेंट्स आर एजुकेटेड, मदर इज एन एडवोकेट और फादर इज अ डॉक्टर। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको बात समझ नहीं आई होगी। उनको बात समझ आई।
मैंने उनको बोला कि मैंने मेहंदी नहीं करूंगा, तो उन्होंने कहा कि लोग बेटा यहाँ से नाक कटवाते हैं ना, तो मेरी यहाँ से कटवा दोगे। तो ऑफ कोर्स इट्स चैलेंजिंग टैबूज, लेकिन बाद में मुझे अंदाजा ही हुआ कि आपकी पेरेंट्स की खुशी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और हर चीज में घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लेसन दे रहा हूँ, मतलब अगर आप अफलातून बनने मतलब आप अगर अल्लाह ताला ने आपको सेंस दे दी है कुछ चैलेंज करें तो पेरेंट्स को छोड़ दें, एक्सक्लूड पेरेंट्स आउट ऑफ दैट। तो अगर आपकी जिंदगी में आपके माँ बाप खुश है आपसे ना, माँ बाप सेटिस्फाइड है, माँ बाप कहते हैं ना धोती में अच्छे लगते हैं, धोती पहन लें, माँ बाप खुश हैं, बिलीव करें यू विल टच स्काइज लाइक दिस। बट अगर आपने अफलातून और अरस्तू अपने माँ बाप के सामने बनना है तो सॉरी, आप वही हैं जिनको तो चम्मच पकड़ना और मुंह से खाना गिरना सब कुछ होता था और माँ बाप ने आपको चलना सिखाया, तो आप उनको मत सिखाएं। माँ बाप गलत सही नहीं होते, बस माँ बाप की बात माननी होती है। ये बिल्कुल कैंडिड ओपिनियन दे रहा हूँ। तो माँ बाप कह रहे हैं कि मेहंदी करनी तो आप कर लें, माँ बाप की खुशी के लिए कर लें, इस पे एटलीस्ट अल्लाह नाराज आपसे। और वो बहरहाल एनीवे, अच्छा तो वो अब जब आप ये चेंज करेंगे ना अपने आप को, तो ये चीज आपके अंदर आ जाएगी, आप हर चीज को चैलेंज करना शुरू कर देंगे क्योंकि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। सो नाउ यू डोंट नीड टू चैलेंज योरसेल्फ देयर। तो बस मैं अच्छा तो अब अगेन कमिंग बैक, तो नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ लाइक दिस कि आप ऐसा मत करें कि अपने पे काम करते साथ साथ लोगों को शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, शेख साहब जैसे आप है ना, मैं फॉर एग्जाम्पल अपने पे काम कर रहा हूँ, मैंने दाढ़ी रख ली, अब मैंने तो रख ली, अब मैं कहूँगा सब रखें और मैं तमाम लोगों में शुरू हो जाऊंगा। या मैं कहूँ जी कि मैं स्मोकिंग छोड़ दिया, मैं तमाम लोगों की जिंदगी, या मैं कहूँ बेशक वो गलत काम है। या मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताऊं कि मैं इस बात को एग्जांपल ले रहा हूँ, एक इंसान को गलत बात को गलत मानना चाहिए, वो छोड़ेगा कब ये उसका और अल्लाह का मामला है या उसका और उसकी पर्सनालिटी का मामला है। सिर्फ कह जरूर दूं शेख साहब, अगर आजकल क्लासेस ऐसी चल रही हैं आप ऐसी ट्राई कर लें, लेकिन मैं कहूँ शेख साहब ये क्या बकवास है, ये कोई तरीका है, आप इतने एजुकेटेड आदमी है, तो ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं ना, और इस पूरी चीज को अगर आप एक जुमले में बोलूं कि हम कहते हैं कि अक्सर हम लोग अपनी जिंदगी के वकील और दूसरे के लिए जज होते हैं। तो ये जो अपना प्रेजेंट बेहतर बना लें, अपना प्रेजेंट बेहतर बना लें, फ्यूचर की परवाह मत करें, फ्यूचर को छोड़ दें, प्रेजेंट जी लें, फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता, आप बिलीव करें। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी ग्रैंड मदर वेरी बिलव्ड टू मी, हम लोग शी डाइड इन 2019 जनवरी, वन ऑफ द वेरी हार्ड डेज टू मी। लेकिन होता है जब बड़ों की चीजें होती है ना, तो अच्छा हमेशा हमारी दादी जो है, मतलब उनसे मैंने जितना कुछ सीखा, खैर वो बता भी नहीं सकता। तो हमारी दादी यूज्ड टू सेव थिंग्स, जैसे कि जब जब चीजें वगैरह, उनकी डेथ हो गई उसके बाद 5-6 दिन बाद उनकी कपड़ वगैरह साफ हो रही थी, तो वी हैव सीन न्यू कपड़े, न्यू जूते, नए अनटच्ड पर्स। कोई कुछ बोला तो नहीं, बट ऑफ कोर्स मैं थोड़ा ऑब्जर्वेंट हूँ इन नेचर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं नोट करता रहा ये चीजें कि दादी के माइंड में भी होगा कि इस तरह करूंगी कि ये वाला जो सूट है ना, ये मैं फ्यूचर में कभी बनवा लूंगी, अभी यही पहन लेती हूँ, या ये जूती फ्यूचर में कर लूंगी। अनटच्ड, वी हैव सीन अनटच्ड थिंग्स। मैंने शायद ज्यादा ऑब्जर्व किया, मैं शायद ये बोल भी सोशल मीडिया पे पहली दफा रहा हूँ, और मैंने मुझे अंदाजा हुआ कि दादी ने मे बी वो प्रेजेंट के टाइम पे फॉर सर्टेन रीजन नहीं लिव दैट मोमेंट, और आई हैव मिस्ड मेनी मोमेंट्स लिविंग इन द प्रेजेंट। आप बिलीव करें, यू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, बिलीव करें। और पेरेंट्स वाली बात की, उनकी बात सुन ले, आप बिलीव करें यू विल टच स्काई। सक्सेस का कोर एसेंस बता रहा हूँ, अल्लाह पे ट्रस्ट, दूसरे के लिए बुरा मत सोचें, सोशल कंपैरिजन मत करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरा, माँ बाप की फरमाबरदार हो जाएं। चौथा, सेल्फ डाउट निकाल कर अपने में बिलीव, और जो अपने आप को जैक ऑफ ऑल ट्रेड और किंग ऑफ नन वाला कहानी, मतलब थोड़ा सा ना आप अपने आप को हर चीज में मास्टर मत समझे, स्पेशलिटी पे बात करें। अगर शेख साहब मुझे कहें अली सीमेंट क्या होता है, मैं सीमेंट पे भी शुरू कर दूं, सरिये पे भी शुरू कर दूं, रेत पे भी शुरू कर दूं, फिजिक्स पे भी शुरू कर दूं, केमिस्ट्री पे, एंड शेख साहब हंस भी रहे हैं, वो हर फैमिली में इस तरह का कोई बंदा होता है, यू टॉक अबाउट एनीथिंग एंड स्टार्ट गिविंग ओपिनियन अबाउट एनीथिंग। माशाल्लाह शेख साहब, आपसे मेरी लास्ट बात कर रहा हूँ, आपसे मेरी मुलाकात हुई तो हमने एक कॉमन नोट शेयर किया कि हम लोग यूरोप हमने ट्रैवल किया। शेख साहब होता ही है अक्सर कि आप लोगों से बात कर रहे होंगे और आप कहेंगे यूरोप में, वो बात करेंगे यूरोप में ये होता है, यूरोप में ऐसा होता है, यूरोप में ऐसा होता है, एंड आप कहेंगे आप कभी गए लेकिन नहीं, और ये बहुत कॉमन है। और आप उनसे कहना कि जी मैं गया था, नहीं आपको क्या पता जी, वो होता ही ऐसा है, वो जी आपने देखा नहीं हो। तो सूडो ओपिनियंस इतनी कैरी करते हैं कि हम लाइफ में पता नहीं क्यों ये समझते हैं कि हम दूसरे को निगेट करके विल बी सक्सेसफुल। तो बस मेरा जो बस फोकस है ना इस सेशन में, एटलीस्ट कैन यू प्लीज, घोड़ों को देखें अपने, वो बांधे होते हैं वो टांगे को,
तो अगर वो टांगे की तरह अपनी आंखों के गेट्स इनटेंजिबल किस्म के वो बांध रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं आता, करेक्ट नहीं अगर आप उसका नाम आपको पता है बता दीजिए, वो जो बांधे होते हैं, जी जी, तो वो फोकस हमारा अगर एक तरफ हो जाए तो बिलीव करें आपकी जिंदगी इतनी पुरसकून हो जाएगी। और आप मुझे 6 महीने बाद कॉल कर रहे होंगे कि सर ये 20 मिनट का सेशन सुना था, यकीन करें जिंदगी बहुत पुरसकून हो गई है। लेकिन सोशल कंपैरिजन, अब मैं आपको लास्ट जो चीज है, वो अच्छा नहीं है, अच्छा सब्जेक्टिव टर्म, वो बुरा है, बुरा सब्जेक्टिव टर्म। वो कहते हैं सिचुएशन बड़ी नॉर्मल है, तो मकड़ी के जाले में अगर मक्खी फंस जाए तो सिचुएशन जो है वो मकड़ी के लिए नॉर्मल होती है, मक्खी के लिए नहीं होती। सॉल्व सब्जेक्टिव टर्म्स। यार शेख साहब कहे यार सर करो अच्छा सा खाना बना लाओ, और आपकी बेगम दाल बना के लाए, आप कहें बड़ा मैंने तो तुम्हें अच्छा सा खाना कहा था, वो कहेंगे मेरे मुताबिक तो ये दाल अच्छी है। तो आपकी और अच्छा और बेगम का अच्छा डिफरेंट हो सकता है। सो यू नीड, तो ऑब्जेक्टिव बात करें, ऑब्जेक्टिव। मुझे अच्छे खाने में कढ़ाई चाहिए, मुझे अच्छे सूट, तुम आज अच्छा सा कलर पहन लो, तो वो पीला पहन ले, कहेंगे ये तुमने क्या पहना है, कहेंगे मेरे मुताबिक तो अच्छा है। सो यू नीड टू से कि आप ब्लू कलर पहन लें। ब्रिंग ऑब्जेक्टिविटी टू योर कम्युनिकेशन। यार इस तरह करो, खाने में मिर्चें बहुत हैं भाई, मिर्चें खाने में उनके मुताबिक नहीं है, आपके मुताबिक हैं। सो ये जो सब्जेक्टिव चीजें हैं ना, उनमें लड़ना छोड़ दें। डोंट पुट गो इन एवरी आर्गुमेंट, और आप सोचें कि नहीं यार मुझे तो मेरा ये फर्ज है और मुझे इसमें स्पेशलाइजेशन है, आई जस्ट नीड टू आर्ग्यू फॉर एवरीथिंग। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। एक सब यही कहूँ। लवली, बहुत मदद दिया आपने, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। हमारे माशरे में तो यही प्रॉब्लम है, हम सब अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं और मुफ्ती बन जाते हैं हर चीज़ पे। आजकल कोरोना के स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, कुछ दिन पहले जहाज गिरा तो एवियोनिक्स के स्पेशलिस्ट बने हुए थे जो नई मेडिसिन आ रही हैं उसमें स्पेशलाइज कर रहे हैं। नेवरदलेस, तो एक लास्ट मैसेज दे दो यंगर जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए, इफ यू वुड वांट टू। बहुत शॉर्ट कंसाइज देता हूँ। if you get 8 hours to cut down a tree, spend 6 hours in sharpening your axe। अगर आपको जिंदगी 8 घंटे एक दरख्त काटने के लिए दे रही है तो 6 घंटे अपना आरा तेज करें और 2 घंटे करें। अब मैं आपको बता दूं कि हार्ड वर्क करने वाली दुनिया बहुत मौजूद है, सोसाइटी ने इतना पुश कर दिया हुआ है, आपके पेरेंट्स ने, आपकी मजबूरियों ने। सो यू नीड टू वर्क स्मार्टर विद बीइंग वर्किंग हार्डर। और ये बात थी। और एक लास्ट बात जो मैं कहूँगा कि इफ यू पुट योर सेल्फ ऑन फायर, people from 1,000 miles come to see you burn. So you need to be like on fire, put yourself with great enthusiasm, relentless optimism, perseverance, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार मत माने, अपना प्राइस टैग पे कंप्रोमाइज मत करें। आप आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपकी तरफ आ जाएंगी। किसी को देखकर वो आपको नहीं आइडिया होता, बट वो सर अब बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली कहानी है कि वो कितनी मेहनत कर कितने चीजें देखकर वो ऊपर आया है। वो बड़ी मेहनत हर बंदे की होती है, लेकिन पोस्ट आपको सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग नजर आ रही है, जिसकी पोजीशन या उसकी डिग्री। सो प्लीज आप मेहनत जरूर करते रहे। वन डे अल्लाह ऑफ कोर्स विल डेफिनेटली ब्लेस यू, और ऑटोमेटिकली ये होता है। लोग समझते नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपका पैथ बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है जब अल्लाह ने करना होता है। और जब अल्लाह ने नहीं करना होता, या वो अल्लाह से मुराद के वो आपकी लिए बेहतर नहीं होता, कुछ भी कर लें आप नहीं कर सकते। एक तो ये बात। एंड लास्ट इज कि अगर पूरी दुनिया आपको जलील करने में लग जाए, पूरी दुनिया, और अल्लाह आपको इज्जत दे तो आपको इज्जत मिलेगी। और अगर पूरी दुनिया आपको इज्जत देने के चक्कर में लगी और अल्लाह आपको जिल्लत मिलेगी। सो इसमें परेशान मत हो कि जी मेरे खिलाफ तो बहुत ज्यादा दुनिया है। फोकस वही जो वो कह रहा था, वो टांगे वाले, फोकस करें एक जगह पे, उस फोकस के बाद अपने पे। और प्लीज और कोशिश करें कि जैसे मैं हूँ, मेरे वाले साहब डॉक्टर हैं, और मैं उनसे मजाक में कोई बात करता हूँ तो कहते हैं यार आई एम MBBS राइट, मुझे पता है ये ऐसा है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल, मैं तो एक एजुकेटेड डिस्कशन कर रहा हूँ। सो डॉक्टर मत बने, इंजीनियर्स को इंजीनियर्स रहने दें, ठीक है, PhDs को PhD रहने दें। हर चीज में अपनी टांग मत अड़ाएं प्लीज। और जिंदगी यकीन करें इतनी पुरसकून हो जाएगी आपकी कि आप मुझे 5-6 महीने बाद कॉल करके कह रहे होंगे सर वो सुना था, यकीन करें इट हेल्प्ड अस अ लॉट। Wonderful. It was a pleasure having you, Dr. Ali Raza Nehmati. Thank you so very much for joining. You take care of yourself. Thank you so much. Thank you so much, sir. And stay safe. Allah Hafiz. Thank you so much. Jazakallah, sir.